ربیع الاول مہینہ آئے گا. ارے بولو آئے گا نا؟ بلاؤ گے میرے کو؟ وہ تو ابھی معلوم پڑے گا کس کا ٹائر کتنا پنچر ہوتا ہے. بھائی ربیع الاول آئے گا, ابھی وہ مبارک مہینہ آئے گا, ساتھ میں بولو, جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور نبی کا جانا بھی ہے. اللہ کی قسم میرے بمبئی والوں, نبی کا آنا بھی مبارک ہے اور نبی کا جانا بھی مبارک ہے. نبی آئے, زمین کے اوپر برکتیں نظر آئی, رحمتیں نظر آئی. نبی گئے, زمین کے نیچے برکتیں نظر آئی. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے نبی ربیع الاول میں سنو گے جو سننا ہوگا. یہاں ایک پوائنٹ کی بات سنو, ہمارے نبی کو دودھ پلانے کون لے گئی؟ حضرت حلیمہ. پورا مجمع بولے حضرت. ہمارے نبی کی ماں کون؟ بی بی آمینہ. اب بی بی آمینہ مکے سے چلی, بولو بی بی آمینہ مکے سے چلی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے, اس لیے کہ حضرت حلیمہ لے گئی قبیلہ بنی سعد میں. حضرت حلیمہ کے قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی سعد. تو وہاں پر بی بی آمینہ اپنے گھر سے چلی اپنے لخت جگر کو دیکھنے, اپنے محمد کو دیکھنے. تو گھر پر گئی, کہا حلیمہ میرا بچہ تو مجھے بتاؤ. تو حضرت حلیمہ گود میں لے کر آئی. ارے بولو حضرت حلیمہ, سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. حضرت حلیمہ ہمارے نبی کو گود میں لے کر آئی اور حضرت حلیمہ کی زبان سے نکلا آمینہ, آمینہ میں پورے قبیلے میں گئی, پورے گاؤں میں گئی. ارے میں قبیلہ بنی سعد کی رہنے والی. حضرت حلیمہ کہتی میں پورے قبیلے میں گئی, پورے گاؤں میں گئی. پیدا کرنے والے اللہ کی قسم, اس بچے سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تو بی بی آمینہ کیا کہتی ہے؟ ارے حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی, قبیلہ بنی سعد کی رہنے والی, تو کہتی ہے کہ پورے گاؤں میں اس سے جیسا اچھا بچہ نہیں ملا. بی بی آمینہ کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں تو مکہ شہر میں رہنے والی, میں نے پورے مکے کو چھان مارا. اللہ کی قسم تو گاؤں کی بات کرتی ہے, پورے مکے میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. ابھی سن رہا, کون کون بات کر رہے ہیں؟ حلیمہ اور بی بی آمینہ. بولو نا حلیمہ اور بی بی آمینہ باتیں کر رہے ہیں نا. اتنے میں وہاں پر دادا عبد المطلب آ گئے. بھائی ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب آئے, کہا حلیمہ آمینہ کیا باتیں کرتے ہو؟ حلیمہ نے کہا میں نے ایسا بچہ خوبصورت گاؤں میں نہیں دیکھا. آمینہ کہتی میں نے پورے مکے شہر میں نہیں دیکھا. ارے دادا عبد المطلب کہتے ہیں حلیمہ تو بھی رہنے دے, آمینہ تو بھی رہنے دے, تو گاؤں کی بات کرے, تو شہر مکہ کی بات کرے. اب دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں نے تو ملکوں کا سفر کیا, جنگلوں کا سفر کیا, دریاؤں کا سفر کیا, سمندروں کا سفر کیا. ارے میں نے تو بیابان کا سفر کیا, ملکوں کا سفر کیا. پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کسی بھی ملک میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے جمع ہو گئے؟ دادا عبد المطلب, بی بی آمینہ اور حلیمہ. روایت میں لکھا اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. بولو اللہ نے حضرت, سبحان اللہ بولو, اللہ نے حضرت جبرائیل کو انسان کی شکل میں بھیجا. حضرت جبرائیل آئے اور کہا دادا عبد المطلب, بی بی آمینہ اور حلیمہ میں جبرائیل ہوں, اللہ کا فرشتہ ہوں. اے حلیمہ تو نے ایسا خوبصورت بچہ گاؤں میں نہیں دیکھا, آمینہ تو نے ایسا خوبصورت بچہ شہر مکہ میں نہیں دیکھا. ارے دادا عبد المطلب تم نے ایسا خوبصورت بچہ ملکوں میں نہیں دیکھا. حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے تمام نبیوں سے ملاقات کی ہے, میں نے مشرق بھی دیکھا, میں نے مغرب بھی دیکھا, میں نے جنوب بھی دیکھا, میں نے شمال بھی دیکھا, میں نے زمین بھی دیکھا, میں نے آسمان بھی دیکھا. میرے اللہ کی قسم اللہ نے ایسا خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے کسی کو ایسا خوبصورت بنایا ہی نہیں ہے, اور اللہ ایسا خوبصورت کسی کو بنانے والا بھی نہیں ہے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں پھر پرانی بات پر آ رہا ہوں. حضرت فاطمہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا. بولو سبحان اللہ بولتے جاؤ نا. بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں میرے دوستوں, نعرے تکبیر ضروری ہے. پورا مجمع بولے نا. حضرت فاطمہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا, حضرت ابو بکر نے نبی کے چہرے کو دیکھا, حضرت عمر نے دیکھا, حضرت عثمان نے محمد کے چہرے کو دیکھا, علی مرتضیٰ نے نبی کے چہرے کو دیکھا, طلحہ نے دیکھا, بلال نے دیکھا, ارے زبیر نے دیکھا, عشرہ مبشرہ نے دیکھا, 1,30,000 صحابہ نے دیکھا. سب نے کہا میرے نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں لوگوں کی باتیں چھوڑو, لوگوں کی باتیں چھوڑو. بمبئی والے قرآن اٹھاؤ. اللہ کہتا میرا محبوب
जब तू आसमान की तरफ देखता है, मैं एक तरफ से पूरी दुनिया को देखता हूँ और एक तरफ सिर्फ मेरे मोहम्मद को देखता हूँ। मैं लोगों की बातें नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ? अल्लाह की। अरे लोगों ने हमारे नबी को देखा, मोहब्बत से देखा, पैदा करने वाला खुद कहता है मेरा मोहम्मद, जब तू आसमान की तरफ देखता है तो फिक्र मत कर, मैं भी तेरी तरफ देखता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान में लिखा है, आप लोग ऐसा मत देखो मेरे को। कहाँ पे लिखा है? कुरान में, पारा नंबर 2। बोलो पारा नंबर 2 आयत नंबर 3। फिर बोलो भाई पारा नंबर 2 आयत नंबर। अल्लाह ने, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी, सारे कायनात ने तुझे देखा, सारे लोगों ने तुझे देखा, सारे सहाबा ने तुझे देखा। अल्लाह कहता मेरा महबूब, जब तू आसमान की तरफ देखता, कोई देखे न देखे, पैदा करने वाला खुद मोहम्मद को देखता। बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ भाई, हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा होगा? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। पूरा बंबई साथ में बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा होगा? अभी भी आवाज नहीं आ रही। चेहरा होगा जिनके चेहरे को सहाबा देखे, जिनके चेहरे को खुद अल्लाह देखे। अरे जिनके चेहरे की तारीफ जिब्राइल करे, जिनके चेहरे की तारीफ दादा अब्दुल मुत्तलिब करे, जिनके चेहरे की तारीफ दाई हलीमा करे, जिनके चेहरे की तारीफ माँ बीबी आमिना करे, और जिनके चेहरे की तारीफ उनकी लाडली बीवी हजरत आयशा करे। और अल्लाह जिस चेहरे को देखे, बताओ वो चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा नहीं। अब बताओ भाई, किस चीज को नबी का चेहरा पसंद है? जल्दी जल्दी टाइम बहुत कम है भाई, टाइम बताओ। टाइम 9:30 बज गए भाई, पौना घंटा मेरे पास है, अभी तो बहुत सारी बातें करना है। अरे बताओ ना भाई, नबी के चेहरे से कौन कौन मोहब्बत करता? हाथ ऊपर करे भाई, हाथ ऊपर करे। बल्कि चेहरे की बात ना करें, यूं कहते भाई नबी से मोहब्बत कौन कौन करता है? साथ में बोले, अरे बोले ना, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। एक बार फिर बोले, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी, ईमान सलामत रहेगा, और मुस्तफा से मोहब्बत करते। और हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? आवाज नहीं आ रही। नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? अभी भी बोलो भाई, नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? सही में ना, नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? दाढ़ी का है? नहीं, आप लोगों की दाढ़ी का है? एनी प्रॉब्लम भाई? दाढ़ी का है आपकी? हाँ ना, अमीर 50% लोग बगैर दाढ़ी के बैठे। और अभी आपने देखा, फातिमा ने नबी के चेहरे को देखा, अबू बकर ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अली ने देखा, बिलाल ने देखा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने देखा, जुबैर ने देखा। अरे 1,30,000 ने जब नबी के चेहरे को देखा, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, बीबी हलीमा ने देखा, बीबी आमिना ने देखा। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह खुद कहता मैं मोहम्मद के चेहरे को देखता, तो इससे बढ़कर तो कोई चेहरा नहीं। तो फिर हमारे चेहरे में दाढ़ी क्यों नहीं? ए भाई, मेरे को एक बात, नबी के तरीके पे चलना कामयाबी है कि नहीं? नहीं, बोलो ना, है कि नहीं? आप अल्लाह के वलियों को मानते हो? नहीं मानते? मानते हो? अरे जोर से बोलो, जिसके पेट में दुखता हो और बाहर निकल के आ जाए भाई। अरे बोलो ना, अल्लाह के वलियों को मानते हो? अच्छा, मेरे को ईमान से बताना, ईमान से बताना। आप लोग सिर्फ हाँ बोलना, बाकी आगे कुछ मत बोलना। नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी? आवाज नहीं आ रही है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत इमाम हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी? अरे बगदाद में आराम करने वाले गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके चेहरे पे दाढ़ी? ये अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके चेहरे पे दाढ़ी? ये दिल्ली में आराम करने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी? ख्वाजा अमीर खुसरू के चेहरे पे दाढ़ी? ख्वाजा रोशन चिराग के चेहरे पे दाढ़ी? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के चेहरे पे दाढ़ी? बाबा फरीदुद्दीन अत्तार के चेहरे पे दाढ़ी? हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी?
अल्लाह की कसम कोई वली वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई बम्बई वाले, उन सबके चेहरे पे दाढ़ी और आपके चेहरे पे एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है भाई दाढ़ी रखने से? अच्छा मौलाना अमीन, एक बात तो अभी तक मेरे को समझ में नहीं आई भाई। एक आदमी ने दाढ़ी रखा, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक ने नहीं रखा, बोलो औज़ु बिल्लाह। फिर बोलो ने एक ने रखा अल्हम्दुलिल्लाह, एक ने नहीं रखा औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कुछ ऐसे जो रखते भी है नहीं भी रखते, वो ऐसी छोटी सी पट्टी बनाते हो क्या? नहीं, ऐसी छोटी सी पट्टी बनाते हैं। और बड़े बुड्ढे को भी देखा मैंने भाई, हाँ, उसको डायबिटीज की बीमारी है, प्रेशर की बीमारी है, एक पाँव कबर में लटकता है और संडे मॉर्निंग वो लेता है रेजर लेता ये क्या भाई? भाई दाढ़ी रखा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रखा लेकिन ये जो छोटी सी पट्टी बना था, बताओ शरीयत में इसकी इजाजत है? भाई परमिशन ग्रांटेड। बल्कि उसने ऐसी दाढ़ी रखा था ना, ऐसी छोटी सी दाढ़ी, मालूम नहीं मेरे को मिला, बाहर कहीं से आया था, एक छोटी सी दाढ़ी रखा। मैंने कहा ये दाढ़ी नहीं चले, तो मेरे को कहता है मौलाना तेरे को नहीं मालूम, दिस इज ओके। मैंने कहा दिस इज धोके। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है भाई बोलो ना, सबके चेहरे पे दाढ़ी थी ना? हम वलियों से मोहब्बत करते थे, करते हैं और वलियों से मोहब्बत करते हैं इंशाअल्लाह। मैं तो कभी कभी कहता हूँ अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते हो? और ख्वाजा? बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, अजमेर जाते हो ना? मैं मना नहीं करता, मना नहीं करता, मैं भी गया अजमेर। मोहब्बत करते हैं भाई हम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करते हैं। आवाज से बोलो, करते हैं। कान में तकलीफ, आवाज से बोलो, करते हैं। सच्ची की झूठी मोहब्बत? सच्ची। अरे अजमेर तक गया, फिर अजमेर से वापस आया, रास्ते में नमाज नहीं पढ़ा और फिर बोलता ख्वाजा का दामन। ऐसा होता बोची पे दो खींच के दे, ख्वाजा का दामन नीचे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नमाज छोड़ी? अरे बोलो। अच्छा चलो एक बात पे आ जाओ, चलो एक सारी रियलिटी पे आ मौलाना अमीन, माफ करना, एकदम रियलिटी पे आवे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कौन कौन मोहब्बत करता? अजमेर वाले बाबा करते ना भाई मोहब्बत? अच्छा उनके अब्बा का नाम क्या है? नहीं मोहब्बत करते इसलिए पूछ रहा हूं। कोई घर जावे, ये ईमान से बोलना बम्बई वालों, बम्बई वाले बहुत होशियार है, आमची मुंबई, हाँ, और मैं भी मुंबई का ही हूँ और आपसे दूर का नहीं। ये कुर्ला है ना, कुर्ला, मैं सांता क्रूज, यहाँ मैं यही पैदा हुआ भाई, सांता क्रूज में पैदा हुआ, यहीं पे जवान हुआ भाई, इसलिए मैं भी मुंबई का। तुम लोग जिस तरह पानी अच्छा परखते हो ना, मैं भी उसी तरह अच्छा परखता हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अगर हम मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते, उनके अब्बा का नाम? अच्छा हम में से कोई अगर घर में जावे अभी और जाके बीवी को बोले अरे बता बता तेरे बाप का नाम क्या, बता ना, खुश होगी? खुश होगी? अरे घर में मातम खड़ा हो जाएगा। इसको मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम, तेरी और कितनी बीवियां है? हाँ वैसे भी औरत शक में बहुत जल्दी आ जाती है, तेरी और भी कोई है कि तेरे को मेरे बाप का नाम नहीं मालूम? बोलो होगा कि नहीं? कितनी भी मोहब्बत हो, बीवी को जाके बोलो तेरे बाप का नाम नहीं मालूम, तेरी माँ का नाम नहीं मालूम, बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे बीवी एक मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं करती है जब बाप और माँ का नाम नहीं मालूम। तो ख्वाजा अजमेरी ने मोहब्बत को बर्दाश्त कर लिया, जबकि उनका सिलसिला नस्ब हमको मालूम नहीं। बोलो ना, चलो मैं आज बता देता हूँ। उनके अब्बा का नाम है ख्वाजा गयासुद्दीन। क्या नाम है? ख्वाजा गयासुद्दीन। चलो दादा का नाम बोलो। अब ये सोचते हो कि मौलाना से बड़ा पावली कौन होगा? जब अब्बा का नहीं मालूम तो दादा का नाम कहाँ से मालूम होगा? नहीं मालूम ना? अरे बोलो मालूम है? पूरा मजमा, खाली आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। बोलो अजमेर वाले बाबा ख्वाजा, आवाज से बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह। इनके अब्बा का नाम अभी मैंने आपको बताया, बोलो ना, इनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा शेख अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा का नाम इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा का नाम इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का नाम
करो ना, ऐसी मोहब्बत करो ना, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आने वाला वाकया भी समझ में आएगा। ए मेरे प्यारो, मोहब्बत करते हो ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से? अरे एक मरतबा मेरे साथ में बोलो ना, ख्वाजा का दामन। ए मौन अमीन, तेरे को अच्छा लगे ना लगे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता। कोई जब बोलता ना गौस पाक का दामन, नहीं छोड़ेंगे। मैं मेरे सूरत में घर में, अभी तो मैं गुजरात में चला गया ना, तो मैं वहां पर कभी कभी किसी को देखता कोई चिल्लाता है ख्वाजा का दामन, तो मैं अपने घर में चिल्लाता हूँ ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन। तो मेरी बीवी एक मरतबा मेरे को बोली है क्या करते हो? मैंने कहा सही करता हूँ, इसलिए कि जिसने इनका दामन थामा, कसम अल्लाह की जन्नत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान रास्ता अल्लाह। पकड़ो तो सही भाई। ये अजमेर वाले बाबा बोलो कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज आपको मैं सुनाता हूँ, आपका दिल हैरान हो जाएगा। अजमेर में, अजमेर शरीफ में 3 दिन ऐसे गुजरे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कुछ खाया नहीं। बोलो खाया? ऐसा नहीं था कि अजमेर में कुछ था नहीं। अरे नाश्ते पे 3000 का लंगर आता है, नाश्ते पे ब्रेकफास्ट, ओनली इन ब्रेकफास्ट अटेंडेंस ऑफ 3000 पीपल, यानी ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में 3000 आदमी है। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कितने दिन तक खाना नहीं खाया? अब दिखती बात है, जब इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे, तो जो आपसे करीबी मोहब्बत करने वाले वो भी नहीं खा रहे। अरे बोलो वो भी नहीं खाए। हाँ, ये बात बराबर है। जब पीर नहीं खाएंगे तो मुरीद भी नहीं खाए। अब उल्टा हो गया। अब तो मैं देखता हूँ, हम बयान में जाते, मेरे खाने से पहले तो दूसरे शुरू हो जाते हैं। और मेरे तो इधर आस्तीन होगी, इनकी तो आस्तीन भी चढ़ जाती है माशाअल्लाह। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पीर है, इनके मुरीदों ने खाना कितने दिन हो गए? अब 3 दिन तक कोई खाए नहीं, तो कोई इधर पड़ा, कोई उधर बेहोश हुआ, कोई उधर कलाबाजी खाया, कोई उधर गिरा। इनके जो खास मुरीद थे ना, इनके आगे कहा हजरत खा लो, हजरत हजरत खा लो। ये सारे मुरीद बेहोश हो गए, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई बेचारा बुखार में तप रहा है। अब खा लो ना, आप खाएंगे तो सब खाएंगे, वरना ये मर जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खड़े हो गए, कहा 3 दिन से मैं सिर्फ नमाज पढ़ता, वजू करता, तहज्जुद पढ़ता, और सबको कह दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 3 दिन के बाद कहा ऐलान करो, खानका में सब खाए, मुझे न देखे मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे न देखे मुझसे। ये कहा कि सारे मुरीद जैसे धड़ करके गिरे, हजरत ये 4 दीवारी में आपसे क्या गुनाह हो गया? ये 4 दीवारी में जहाँ अल्लाह अल्लाह का रसूल का नाम लेते, यहाँ 5 वक्त की नमाजें होती है, आपसे कौन सा गुनाह हो गया? अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, उठाओ तारीख, फरमाया 3 दिन पहले ईशा का वजू कर रहा था। साथ में बोलो, 3 दिन पहले ईशा का वजू कर रहा था। वजू करते करते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। उंगलियों में खिलाल करना, उलमा को पूछो ये सुन्नत होगा या मुस्तहब होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। गैब से मैं अजमेर में हूँ, मदीने से मेरे नबी की आवाज आई, मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता। मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता। बस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, मदीने में मेरा नबी मुझसे नाराज है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। बस इतना कहा। आज भी अजमेर की जमीन गवाही देती है, गैब से नबी की आवाज आई, मोइनुद्दीन खा ले, हम कयामत तक तुझसे राजी हो चुके हैं, खा ले, हम कयामत तक तुझसे राजी हो। तब जाकर आपने खाना खाना शुरू किया। तो क्या भूल गए थे? बोलो ना, क्या भूल गए थे? और यहाँ क्या भूल गए? यानी शर्म की बात है भाई। नमाज जिंदगी में नहीं, ज़कात जिंदगी में नहीं, रोजा और तरावी जिंदगी में नहीं। अरे मेरे दोस्तों, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, आंखों का गुनाह, जबानों का गुनाह, और फिर इतने आराम से मोमिन हर तरफ गुनाह करेगा और ऐलान करेगा ख्वाजा का दामन। शर्म आवे नहीं छोड़ना बोलने को। चलो मेरे प्यारों, आप नाराज मत हो। दूसरी बात पर आ जाओ तो मेरे को बहुत खुशी होगी। पूरा मजमा साथ में बोले, मुस्तफ़ा का दामन, मुस्तफ़ा का दामन। भाई अभी भी 1.25 घंटा है, बोलो ये बात को लंबा करूं। एक मेरे को हजरत फातिमा का वाकया याद आ गया, सुनाऊं? हजरत फातिमा का वाकया सुनाऊं? नहीं, आप लोग थक गए, जाने के बाद करें। सुना नहीं भाई, ये क्या नाम, क्या ये बस्ती का नाम क्या है? संजय नगर। संजय नगर। अभी मेरे को यहाँ कोई खाना नहीं खिलाएगा, मेरा हो गया खाना। हाँ, अभी मेरे को यहाँ से सीधे जाना है,
कल मेरे को लखनऊ पहुंचना है, लखनऊ में बयान करना है, फिर सुल्तानपुर जाना है, बहुत लंबा सफ़र है मेरे प्यारों। लेकिन आपकी मोहब्बत को देखकर मैं हज़रत फातिमा का एक वाक़या सुना दूं जिसमें अच्छा भी लगता है और रोना भी आता है। सुनेंगे सर, सुनेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक मरतबा बोल दो भाई, मेरी पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफ़ा का दामन। मोहब्बत करेंगे ना नबी से? नहीं बोलो ना, नबी से मोहब्बत करेंगे ना? सच्ची के झूठी? सच्ची। नहीं आवाज से बोलो, सच्ची के झूठी? झूठी मोहब्बत पकड़ी जाती है, सच्ची मोहब्बत आसमानों पर पहुंचती है। एक मौलाना खाना खाने को गए, सुनेंगे आप लोग? मौलाना आप भी बयान करते हैं? बाकी बयान करने वाले बहुत खाते भाई, हाँ? कि मेरे को कितने लोग कहते हैं मौलाना ये पेट का कुछ कर, डाइटिंग वाइटिंग कर। मैंने कहा काय का पेट का कर, मुर्गी का कब्रिस्तान है भाई। हाँ? तो एक मौलाना खाना खाने गए, सुनना, एक मौलाना खाना खाने गए, खाना बहुत अच्छा लगा। अरे बोलो खाना, मौलाना अमीन तू सुन, बराबर सुन। खाना बहुत अच्छा लगा। मौलाना क्या बोले मालूम है? खाना खा लिया ना, कहा भाई घर का मालिक कौन है? तो बताया भाई ये घर का मालिक है। मौलाना ने उसका हाथ मिलाया, भाई बहुत अच्छा खाना पकाया और तेरी बीवी ने पकाया, उसको मेरा सलाम बोलना और बीवी को बोलना इतना अच्छा खाना बनाई, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वो बीवी ने अंदर सुन लिया, मौलाना तो चले गए। बुलाया किसको? हस्बैंड को। और किसको बुलाएंगे? हस्बैंड को, शोहर को बुलाया। कहा देखा वो मौलाना ने जिंदगी में एक मर्तबा खाना खाया, मेरे को जन्नत की दुआ दी, और तू 25 साल से कमीना खाता है, मेरे हाथ की रोटी खाता है, बोटी तोड़ता है, एक बार भी मेरे को जन्नत की दुआ नहीं दिया। वो शोहर सोचा, पॉइंट टू बी नोट, बात तो बराबर है, लेकिन अभी मैं कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे ढोंग काय को करता है। इसलिए शोहर ने उस वक्त तो चला गया और दिल में रखा कि एक दिन बीवी के खाने की तारीफ ऐसी करूंगा कि बीवी भी समझ जाएगी मैं बहुत मोहब्बत करता। 15 दिन हो गए मौलाना अमीन। एक दिन अचानक अपने दफ्तर में से आया, भाई ऑफिस में से आया और सामने देखा कि बिरयानी का थाला पड़ा है। उसको वो बात याद आ गई, सीधे आके बिरयानी पे टूट पड़ा, ए खावे, ए खावे, ए खावे। बीवी ने कहा क्या टेस्टी बनाया, क्या लजीज बनाया, क्या उम्दा बनाया। और फिर साथ में क्या कहा मालूम? तेरे हाथ की खुशबू भी आ रही है, तेरे बदन की खुशबू भी आ रही है, तेरे हाथ की नरमाहट भी इसमें महसूस हो रही है। ओ बीवी के हाथ में कोई गिलास था, यूं मारा मुंह पे और कहा बेशरम, 25 साल से मेरा खाना खाता, तारीफ नहीं किया। आज पड़ोसन में से बिरयानी आई तो खुशबू आने लगी, आज हाथ की खुशबू भी आ रही है। देखो झूठी मोहब्बत वाला फंसा। इसलिए आप लोग भी वादा करो, दाढ़ी रखोगे ना, सिर्फ यहाँ पे हाँ नहीं करोगे, झूठी मोहब्बत से कयामत में फंसोगे। अरे हाथ ऊपर उठा के बोलो, यकीन के साथ बोलो, मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन। चलो अब मैं हजरत फातिमा का वाक्य सुना दूं। हजरत फातिमा है ना, वो घर में रोटी पका रही, साथ में बोलो ना अच्छा लगेगा, घर में रोटी। अच्छा आज के ज़माने में आपने देखा होगा हमारे घर में औरतें जो रोटी पकाती है, वो छोटा सा तवा होता है, नीचे गैस का चूल्हा होता है, ऊपर तवा होता है। हाँ, तो उस ज़माने में है ना बड़ा तन्नूर होता था। बोलो उस ज़माने में बड़ा तन्नूर होता था, नीचे लकड़ा जलता था, आग जलती थी, उसके ऊपर बड़ा तन्नूर होता था। अब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी की लाडली बेटी, वो रोटी पका रही है। सुनने जैसी बात है, नबी की बेटी रोटी पका रही है। अब रोटी तो पका रही है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, हज़रत फातिमा ने दरवाजा खोला, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। दरवाजा खोला कौन? फैदा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल आए। अरे फातिमा बहुत खुश हो गई, क्या कहा मालूम? अल्लाह के रसूल, मैं रोटी पका रही हूँ, मैं आग बुझा देती हूँ, एक चटाई बिछाती हूँ, उस पर आप बैठ जाओ, आप बहुत बड़े हैं, आप ये। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा रोटी पकाती रहे, मैं बेशक नबी हूँ लेकिन तेरा अब्बा भी तो हूँ, तेरा अब्बा भी तो, कोई चटाई बिछाने की जरूरत नहीं, तू जो जमीन पर बैठी है उसी जमीन पर मैं भी बैठ जाऊंगा। बोलो अब अगर फातिमा बैठी है, सामने तन्नूर है, क्या पक रही है? रोटी। बाजू में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। कभी अल्लाह के रसूल फातिमा से बातें करें, कभी फातिमा अपने अब्बा से बातें करें, कभी अब्बा बेटी से बातें करें, कभी बेटी अब्बा से बातें करें। रोटियां पकी जा रही है, बोलो रोटियां पकी। और हज़रत
फातिमा ने कहा भी अल्लाह के रसूल ये रोटी पक जाएगी, अली भी आ जाएंगे, हम साथ में बैठ के खाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ साथ में खाना खा लेंगे। अब ये सारी बातें हो रही कि हजरत फातिमा को कोई काम याद आया और 2 रोटी बाकी। कितनी रोटी बाकी? यानी 2 टिकिया है, वो टिकियों को खाली बेलन से लंबा करना है और उसको तवे पे डालना है। तो हजरत फातिमा ने कहा अब्बा माफ करना, मेरे को एक काम याद आया, आप ये 2 रोटी पका लोगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे जा बेटी जा, मैं भी पका लूंगा। ये कहकर हजरत फातिमा तो चली गई। हमारे नबी ने वो दोनों टिकिया को लिया, दोनों टिकियों को अपने हाथ पे चौड़ा किया और चौड़ा करने के बाद उसको तवे के ऊपर रख, भाई तवे पर हमारे नबी ने रख दिया। बोलो तवे पर हमारे नबी ने। अब वो जो रोटियां थी ना, न काली हो गई, न जले, न तले, न दाग आवे, न उसके ऊपर धब्बा आवे, कुछ भी नहीं। वो रोटी बिल्कुल सफेद सफेद, व्हाइट एंड व्हाइट। बहुत देर हो गई, अल्लाह के रसूल ऐसे बैठे हैं, वो रोटी वैसी है, न उसके ऊपर दाग, न धब्बा, न काला, न जलना, न तलना, न गर्म होना। इतने में हजरत फातिमा आई। तो हजरत फातिमा ने दूर से देखा कि 2 रोटी पकी, तो हंसते हंसते कहने लगे अब्बा जान आपसे तो 2 रोटी भी नहीं पकी। भाई बेटी थी ना अब्बा जान। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी तू पका ले, आजा तू पका ले। तो हजरत फातिमा आई, अरे इसमें 2 रोटी में क्या रखा? हजरत फातिमा ने बड़ा सा चमचा लिया और वो जो 2 रोटियां रखी थी ना उसको यूं रखा, यूं उठाया और यूं तवे पे यूं घुमाया, फिर उठाया, फिर घुमाया, फिर उठाया, फिर घुमाया। लेकिन वो रोटी ऐसी रोटी, न काला दाग आवे, न उस पर धब्बा लगे, न जले, न तले, न गर्म होवे। तो हजरत फातिमा ने नीचे देखा, नीचे लकड़ा जल रहा है, आग जल रही है, धुआं उठ रहा। तो हजरत फातिमा ने सोचा शायद तवा गर्म नहीं होता होगा, तवे को हाथ लगाया, अल्लाहु अकबर, तवा भी गर्म है, अरे आग भी गर्म है, लकड़ा भी चलता है, धुआं भी उठता है, ये रोटी पकती क्यों नहीं? भाई औरत होती। हजरत फातिमा रो पड़ी, अब्बा जान अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे भी नहीं मालूम बेटी ये क्यों जल्दी पकती नहीं है। इतने में हजरत जिब्राइल आए। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल आए और आकर क्या फरमाया, प्यारे नबी बेटी को कह दो ये रोटी उतार ले, कयामत तक पकने वाली नहीं है, ये कयामत तक जलने वाली नहीं, इस पे काला दाग आएगा, न धब्बा आएगा, न आग आएगी, न गर्म होगी, न जलेगी, न तलेगी। बेटी को कहो कि इसको हटा दे। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे। बेटी फातिमा उठा ले दोनों रोटी को, अब कयामत तक ये जलने और पकने वाली। तो हजरत फातिमा ने कहा लेकिन अब्बा जान क्यों? मैंने रोटी पकाई पक गई, आपने रोटी पकाई नहीं पकी, क्यों? अल्लाह के रसूल ने हजरत जिब्राइल को पूछा। जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी इस पर आपका मुबारक हाथ लगा हुआ है। अरे ये 2 रोटियों पर आपका मुबारक हाथ लगा है। और हजरत जिब्राइल ने फरमाया कितनी मर्तबा ऐसा होता आपका हाथ मुबारक लगता है, अल्लाह दुनिया की आग को हराम कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आपका हाथ लगता है, अल्लाह दुनिया की आग को हराम कर देता। ये रोटी पर अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। उस वक्त हजरत फातिमा सुनना, उस वक्त हजरत फातिमा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपका हाथ टच हुआ रोटी पर, बोलो आपका हाथ टच हुआ रोटी पर, दुनिया की आग हराम हो गई। तो अगर हम आपकी शरीयत को ले ले तो हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, मेरा हाथ रोटी को टच हुआ, दुनिया की आग हराम हो गई। ए फातिमा कयामत तक आने वाली मेरी शरीयत पर आ जाए, मैं कसम खाकर कहता हूँ जहन्नम की आग भी उसके ऊपर हराम हो जाएगी, जहन्नम की आग भी उसके ऊपर हराम हो जाएगी। तो मेरे प्यारों कौन है जो मुस्तफा की शरीयत पर आना चाहता है? अगर रोटी पर हाथ लगे दुनिया की आग हराम होती है। हम नमाजों को अपनी जिंदगी में लाए, अल्लाह की कसम जहन्नम की आग भी हम पर हराम हो